والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس امت میں بہت سارے لوگ پیدا ہیں، مختلف جگہوں پر، مختلف گھرانوں میں، مختلف مذہبوں میں پیدا ہوئے، لیکن میرا اور آپ کا ایک اتنا بڑا اللہ کا شکر ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا. یہ سب سے بڑی دولت ہے. ہم ایک مرتبہ ملاقاتوں میں جا رہے تھے تو ملاقات کرتے دو چار ساتھیوں کو بات کر لے کھڑے تھے. اچانک ہمارے سامنے سے ایک گئی جالے کی ادھر ہی دور گئی تھی، اچانک پیشاب کرنا شروع کر ڈالی. اب ہمیں ذرا سائڈ ہو گیا، ناپاک ہے پیشاب، ویسے بھی اب اوپر اڑا تو بدن ناپاک ہوتا ہے. تو ایک فیملی مستورات بچوں کے ساتھ پلٹ کو اسے ہاتھ میں لو کو پی لو کو سلام پہنچا لیے. ہمارا دل بولا کتنا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایمان والا بنایا. اگر ایمان والا نہ بناتے تو ہم بھی یہ پینے والے ہو جاتے. تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ پاک جو ذرا آگے آ جاؤ، پیچھے آنے والے راستہ ہندے مختصر نہیں تھے، انشاءاللہ جلدی ختم ہوتا ہے. آ جاؤ ذرا سامنے آ جاؤ. تو اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا. انسان کو دنیا کی ساری دولت ملے، اگر ایمان نہ ملے تو پھر بھی ناکام ہے. اور انسان کو دنیا میں کچھ نہ ملے لیکن ایمان ملے تو سب سے بڑا ناکام انسان، سب سے بڑا کامیاب انسان. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی آخرت کے وعدے ہیں وہ یہ نہیں فرمائے کہ بھی تم دنیا میں اچھے کاروبار کر لو، اچھے بزنس کر لو، اچھے مکانات بنا کر کے عیش و آرام کی زندگی اتار کر ہمارے پاس آ جاؤ. اس کا تو تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہی نہیں. بس اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے جس حالت میں تمہیں ایمان کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے اس پر محنت کر کے اسے بچا کر ہمارے پاس آ جاؤ. بس مسئلہ یہ ہے. کسی اللہ والوں سے کسی نے پوچھا، حضرت جی کہے آپ جو ہے پوری انسانیت کے بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ والوں نے کہا کہ دیکھو میری یہ تمنا ہے، یہ لوگ کہے جہاں سے آئے ہیں اسے ٹیکا لینے کو پڑ جا رہا ہے. یہ لوگ جہاں سے، ہم سب جہاں سے آئے ہیں وہاں جانے والے بن جائے. تو ہمیں سب آئے سو کہاں سے؟ جنت سے. اور جانا کہاں پر ہے؟ جنت. تو ایک آدمی یہ بولے، آپ کہے کسی شراب پینے والے کو نشے میں ہے، آپ اس سے کھڑا کر پوچھو بھائی تو کیسی موت مرنا چاہتا ہے؟ بے موت تو کتے کی طرح مرنا چاہتا ہے، بے موت مرنا چاہتا ہے، کس حالت میں مرنا چاہتا ہے؟ حالانکہ ایمان والا ہے، نشے کی حالت میں ہے، انہیں بھی فوراً ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے کہ میری موت بھی ایمان پر ہو، میری یہ تمنا ہے. حالانکہ نشے کی حالت میں ہے. تمنا کیا ہے بولو؟ آج کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ماحول میں انسان سے آپ پوچھ لو کہ بھی کس حال میں مرنا چاہتے ہیں، کون بھی یہ نہیں بولتا کہ آج ریلیز ہو سو گانا سن لے کو مرنا، فلاں کام کر لے کو مرنا. سب کی یہ تمنا ہے. بہت ساروں کی تمنا یہ تو ہے، یہ بھی ہے کہ بھی میں سجدے میں رہوں پھر موت آ جائے. ہر آدمی کی یہ تمنا ہے کہ بھی ایمان پر ہماری موت ہو جائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو جائے. لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا، سب یہ سوچتے ہیں کہ ایمان پر موت ہو جائے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ایمان پر زندگی گزر جائے. یہ اصل مسئلہ ہے. زندگی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے اسی حال میں اٹھایا جائے گا کل قیامت کے روز. اب ایک آدمی بولے کہ بھی کبھی اسے نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں مل رہی ہے، لیکن تمنا ہے کہ میری موت سجدے میں آئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ لوگ کہیں مرنے سے ایسا ڈرتے ہیں کہ ہمارے مولانا اکبر سے بتا رہے تھے، ایک آدمی مدینے میں گیا، مدینے میں مرنا بھی اسے پسند نہیں ہے، حالانکہ دعا کر رہا ہے یا اللہ مدینے کی موت نصیب فرما، یہاں آیا ہوں، یہاں کی موت نصیب فرما. حضرت بولے شام ہوتے ہوتے اس کا آنکھ گرم ہونے لگا. اب اس کے دو صحابہ جو ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کو دیکھے تو بخار زوروں پر بڑھ گیا. ذرا آگے آ جاؤ، آنے والے پیچھے آنے والے جگہ ہو جائے. بخار بڑے زوروں پر ہے. ساتھیاں بولے ہو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تیری دعا قبول ہو گئی سکا ہے. انہیں بولے یہ دعائیں چھوڑ کو یہ قبول ہونے کا چپ ہو جی، دوسرے دعائیں قبول ہوں دے. حضرت بولے خالی تمنا ہے، لیکن مدینے میں بھی مرنے کی لوگوں کو کیا ہے؟ ڈر لگ رہا ہے. تو موت سے تو ہر ایک کو ڈر ہے، لیکن جانا تو ہم میں سے ہر ایک کو ہے ہی. لیکن جائیں گے کس حال میں؟ مسئلہ یہ ہے کس حال میں جائیں گے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. بڑے بھائی کو دفن کر کو آئے، چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے، گھر والی سے پانی مانگا، ذرا پانی کا گلاس دیو، پانی دیو. اب بیوی پانی لے کر آئی تو چپ چاپ بیٹھے، لیو جی پانی، ہلاک دے تو اس کا انتقال ہو. موت کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. پوری فیملی مل کر دلہن کے لیے شاپنگ کے لیے گئے، نکاح ہے بول کر صبح میں گئے، پورے کہے اچھے سے اچھی مال میں جا کر
लड़की जो पसंद करी वो चीजें खरीदा गया, वो उसकी मनपसंद चीजें पूरी शॉपिंग कर को कहे शाम कहे घर लेकर आए, फिर कहे शाम को वही घर वाले जा रही उसी मॉल में जाकर जो है कफन का कपड़ा कट कर आ रही। अब वो दुकानदार कफन का कपड़ा काटते काटते ये बोल रहा है सुबह तो आप कहे दुल्हन के लिए कपड़े लेकर गए थे, बड़ी बड़ी चीजें खरीद कर गए थे, अब ये कफन किसके लिए लेकर जा रही है? तो उन्हें बोले, अब घर वाले रोते हैं, आंखों में आंसू बहाते, बोले जिसके लिए सुबह दुल्हन के लिए कपड़े ले गए थे उसी के लिए कफन लेकर जा रहे। तो ऐसा नहीं है कि भी सिर्फ बच्चे जाती हैं, उम्र होगी सलत जाती हैं, जवान, ऐसा कोई मसला नहीं है। बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा उठ जाता है, बेटे के कंधों पर बाप का जनाजा उठ जाता है, किसी का कोई भरोसा नहीं। जाना तो हम में से है, हर एक को है, लेकिन किस हाल में जाएंगे मसला ये। अब जिंदगी अगर मेरे और आपकी ईमान पर गुजरेगी, ईमान की हालत में गुजरेगी, अल्लाह उसके रसूल को राजी करते हुए अगर हमारी जिंदगी गुजरेगी, फिर तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आने वाले फरिश्ते, हदीस पाक में आता है, जब किसी बंदे की जिंदगी कहे अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों पर गुजरती है, जब वो कहे किसी बीमारी में मुब्तला हो गया, मौत के करीब चला गया, इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत आकर उसे कलमा याद दिलाते हैं। आप उसे याद दिलाते हैं, बहलाते हैं, जैसे छोटे बच्चे को बाप बहलाता है, ऐसे कहे उसकी रूह को बहलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तू किसका कलिमा पढ़ता था? वो उस हालत में कहता है कि मैं आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ता था। वो फरिश्ते बोलते हैं ये कलमा पढ़ो, को याद दिलाते हैं, अच्छा कौन सा कलमा जरा पढ़ो। अब वो जब क्या कहे कलमा पढ़ने को शुरू करता है तो उसकी रूह निकाल ली जाती। आने वाले फरिश्ते उसे याद दिलाकर उसकी रूह निकालेंगे। ये कब होगा मेरे दोस्तों? जबकि जिंदगी उस तरीके पर गुजरेगी, उस नहज पर गुजरेगी। लेकिन सहाबा का मसला ऐसा नहीं था। सहाबा को अल्लाह के नबी ने बशारत दी थी, अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो। हालांकि फिर भी आखिरत का डर, अल्लाह के नबी फरमा रही हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, अबू बकर कल क़यामत के रोज अल्लाह इतने गुस्से में होंगे, उनके गुस्से को देखकर हर नबी कांप रहे होंगे, लेकिन अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने के लिए अबू बकर तेरे ईमान को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा और अल्लाह तेरे ईमान को देखकर जो अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अब वो अबू बकर सिद्दीक क्या हाल है उनकी जिंदगी का देखो। अल्लाह के नबी बशारत दे रहे अबू बकर जन्नत के बड़े लोगों के सरदार हैं। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने कहा जिब्राइल जाओ जरा जन्नत में घूम करो। उलमा फरमाते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं, अगर कहे वो 2 परों को अगर यूं खोल दे पूरी दुनिया चंडुल की तरह उनके बगल में आ जाती। अब जिस फरिश्ता के 2 पर इतने बड़े हो तो पूरे 600 पर खोले तो अब वो फरिश्ता कितना बड़ा होगा जरा सोचो। अब अल्लाह पाक ने कहा जिब्राइल जाओ जरा जन्नत को देख कर आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उड़े, अपने पूरे 600 परों के साथ उड़ते गए जन्नत में घूमते 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 थक कर बैठ गए और फिर उड़कर गए, फिर गए। देख इस तरह 3 मरतबा बैठे, फिर उड़ने लगे, इतना घूमा, जन्नत में आकर कहने लगे या अल्लाह मैं बहुत थक गया, मैंने जन्नत को बहुत देख लिया। अल्लाह पाक ने है कि जिब्राइल तूने तो अभी तक अबू बकर के जन्नत का आंगन भी नहीं देखा। जब उन लोगों की इतनी बड़ी बशारत है, लेकिन हाल देखो क्या है। कहे एक मर्तबा बाग के अंदर गए, देखा एक जानवर दरख्त के नीचे सोया है, तो ठंडी सांस भरकर कहने लगे ओ जानवर तो कितने मजे में रहता है, खाता है पीता है, दरख्तों के साए में रहकर कहे खत्म हो जाता है, कल तेरा कोई हिसाब नहीं, काश के अबू बकर भी तुझ जैसा होता। ये कौन कह रहे हैं जिनके लिए अल्लाह के नबी ने बशारतें दी है? ये कौन कह रहे हैं जिनके लिए अल्लाह के नबी ने इतनी इतनी बड़ी बड़ी बशारतें दी है? जब उनका यह हाल है तो बोलो हमारी कौन सी सर्टिफिकेट है भाई? हमारे पास ऐसी कौन सी सर्टिफिकेट है जो हम मुतमईन होकर लोग आज जिंदगी बसर कर रहे हैं? हाँ भाई, लोगों की सुबह आज 9 बजे हो रही, 8 बजे हो रही। कितने मुसलमान लोग हैं अजान से पहले दुकान खोलते लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। क्या नहीं पढ़ते? अब मैं देखो देखते ना हमारे मोहल्ले में कितने लोग ऐसे हैं बेचारे, होटल वाले आ जाते हैं, दुकान वाले, चिल्लर दुकान वाले अजान से पहले दुकान खोल रहे लेकिन नमाज की तौफीक नहीं हो रही। कितनी ताज्जुब की बात है देखो। किसी ने कहा कि वो लोग हमेशा नाकाम रहते हैं हाँ, जिनको सुबह सूरज जगाता है, वो लोग हमेशा कामयाब रहते हैं जो सुबह उठकर सूरज को जगाते हैं। देखो हमारे घरों का हाल क्या बना हुआ है। हमारी जिंदगी में दीन नहीं, हमारी घरवाले की जिंदगी में दीन नहीं, मेरे बच्चों की जिंदगी में दीन नहीं मेरे दोस्त, इसका नाम दीन नहीं है। आज हमने उसे दीन समझ लिया है जो हमने आसानी के साथ समझ में आ रहा है, और वो आसानी के साथ हमारा काम पूरा हो रहा है, ये आसान दीन हमने समझ में आ रहा है और हमें उसे दीन समझ ले को जिंदगी बसर कर रहे। लेकिन दीन आसानी का नाम नहीं है। दीन तो बहुत आसान है लेकिन मुश्किल उसके लिए है जिसने सीखा नहीं। बस समझ में आ रही है भाई? इसके लिए मेरे दोस्तों अल्लाह पाक ने हम सबको मौका दिया है, दीन पर चलने का मौका मौत से पहले पहले। मेरे दोस्तों मौत आ गई, पूरे मसले खत्म। मौत आ गई, पूरे मसले खत्म, धरा का धरा रह जाएगा, पर्ची मौजूद सबके हाथ आ जाती। आज नहीं लो, हमें इस चक्कर में पड़ गई। अब मैं कर लिया तो फला मेरे साथ रहने वाला क्या बोलता क्या रहा सुधर का तू। अब हमारी फ्रेंड सर्कल में देख लो कौन तब जर्रा माशाल्लाह दरा सुधर को टोपी पहन को दरा हूँ कहते हुए
अच्छे अंदाज से चलना फिरना बात करना, करे क्या भाई बहुत सुधर के सका है ना तू, बोली गिले होगा इसकी। ऐसा टोकना टोकते बेचारे को कि फिर उन्हें दोबारा उसके पास भी नवे मस्जिद के करीब भी नहीं जाता। ये सब न करो भी, जैसा था वैसा अच्छा है। हमारे एक बुजुर्ग थे हम मोहल्ले में, बड़े शराब के आदी थे। देखो आदमी बिगड़ता है बुरी दोस्ती से, याद रखो। आदमी, इमाम गजाली फरमाते हैं बेटा ईमान के बाद अगर किसी चीज को तलाश कर तो अच्छे दोस्तों को तलाश कर। लुकमान हकीम फरमाते हैं दुनिया उसे यतीम कहती है जिसके माँ बाप नहीं होते, लेकिन मैं उसे यतीम कहता हूं जिसके अच्छे दोस्त नहीं होते। आज बिगड़ते सब दोस्त, बुरी दोस्ती की वजह से। कितने लोग देखो माशाल्लाह वक्ता लगा लगा 3-4 महीने भी लगा लगा बहुत सारे, आने के बाद वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थे अब भी है। बड़े नशे की हालत में थे, उनको जाकर समझे सब करे, बेचारे कन्वर्ट कहे तौबा कर लिए, सब हुआ अच्छा माशाल्लाह, पाबंदी से नमाज को आते थे। अचानक एक दिन नमाज को नहीं है, 5-6 महीने पाबंदी से नमाज पढ़ते थे, अचानक नहीं है। अब क्या कि ना नहीं है ना, हमें गए घर को, तीसरे दिन गए तो मगरिब की नमाज के बाद गए तो बिस्तर पर नशे की हालत में पड़ी बुजुर्ग। अब मैं खुद पूछा क्या चीज़, नमाज को पाबंदी से आते थे आप अचानक आना छोड़ लेना, क्या हुआ? उन्होंने बोले मेरा पुराना दोस्त मिल गया परसों, रास्ते में मिल को बोला तुम्हारे मेरे ऊपर बड़े बड़े एहसाना थे, मेरे पास नहीं थे इस टाइम पर, बुला ले तुम्हें पिलाए, आज मेरे पास ही चलो मैं पिला दूं। ये एक टाइम पिलाया बाबा, ऐसा चस्का क्या फिर जारियत नहीं आदत। उसी हाल में अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मेरे दोस्तों बोलो अगर इस हालत में लोगों की जिंदगियां हो रही हो, मैं और आप अल्लाह के नबी को क्या जाकर मुंह दिखाएंगे? ये पूरी उम्मत एक जिस्म के मानिंद है, सर में दर्द होगा, आंखों से आंसू निकलेंगे, पैर चल कर जाएंगे, कान जारी को तो जबान बोलती है कि भाई अस्पताल जा रहा हूं। ये पूरी उम्मत जो जिस्म के मानिंद है। हमें बोल रहे सो क्या है फलां जगह लोगों पर जुल्म हो रहा है, फलां जगह जुल्म हो रहा है, उन्होंने क्या करें कि गलती हम उनकी सजा उनको मिल रही नहीं। कभी कभार अल्लाह दूसरों को सजा देकर हमें सबक याद दिला रहा होता है। सोचो अगर ये हम चाहते तो ये अजाब तुम पर भी उतार सकते थे। जर्रा कांता भी क्या है, सैलाब आगा, पानी आको पूरे तबाह हो गए तो हमें टूरिस्ट बना ले चले आते, चलो भी फिर लेंगे, पानी है फलां जगह आएगा तो। लेकिन ये नसीहत है हमारे लिए कि फलां जगह अजाब देकर हमें समझाना चाह रहा है। तो बहुत मुख्तसर जिंदगी मैं और आप दुनिया में लेकर आए हैं। ये मुख्तसर जिंदगी मेरे दोस्तों एक दिन खत्म होने वाली है, लेकिन कब खत्म होगी हम में से कोई नहीं जानता। तैयारी ऐसे करके जाना है कि हम मरे तो जमाना याद रखे। फला आदमी था, अल्लाह हदीस पाक में आता है जब किसी का इंतकाल होता है, वो बंदा इंतकाल होता है, उसके साथ रहने वाले मोहल्ले में रहने वाले ये बोलना शुरू कर डाले ये बंदा बड़ा अच्छा था, भी बड़ा अच्छा आदमी भी, बड़ा किसी को जबान से हाथ से तकलीफ नहीं दे, बड़ा अच्छा आदमी भी। उलमा फरमाते हैं अल्लाह खुद कहेंगे जब मेरे बंदे तुझे अच्छा कह रहे हैं तो मैं कौन हूँ बुरा कहने के लिए, चल मैं भी तुझे अच्छा ही कहता हूँ। ऐसी जिंदगी गुजार कर जाना, सो ऐसा नहीं कि मरते हुए लोग बोले छोड़ रहा आज जाकर मोहल्ले का कचरा पाक होगा। ऐसी जिंदगी से अल्लाह मेरे और आपकी सबकी हिफाजत फरमाए। हम ऐसी जिंदगी गुजार कर जाए कि हम मरे तो जमाना याद रखें। हम ऐसी जिंदगी गुजारे कि कोई हमें देखे तो उसे अल्लाह याद आ जाए। आप देखे तो वीडियो मावल एड्रा गए ना बोलते सो वीडियो मावल एड्रा, क्या सब उनको मालूम हो रहा है कि इनकी जिंदगी ऐसी है। दिन सिर्फ मस्जिदों के हद तक रह गया है, वो दिन हमारे कारोबार में नहीं। जो दिन मस्जिदों में है वो दिन हमारे कारोबार में नहीं। जो दिन हमारी मस्जिदों में नजर आ रहा है हमारी जिंदगी में, वो दिन हमारी शादियों में नहीं। जो दिन हमारी मस्जिदों में नजर आ रहा है वो हमारे मामलात में नहीं। जो दिन मस्जिदों में नजर आ रहा है वो हमारे कहे लेन देन में नहीं। जो दिन हमारे मस्जिद में नजर आ रहा है वो हमारी घर की जिंदगी में नहीं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम दीनदार हैं मस्जिदों को हद तक, लेकिन बाहर निकलो सब तो कौन की मैं कौन की, शेख अपना अपना देखकर नहीं। वो दीन अल्लाह एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा हजरत मेरा मकाम अल्लाह के नजदीक कितना ऊंचा है, उनको ये मुझे दुनिया में रहकर कैसे मालूम होना, कैसे मालूम होगा? तो देखो हमारा पूरा मसला क्या है वो एक बेचारा हल कर डाले। उन्हें क्या पूछे अल्लाह के यहाँ मेरा क्या मकाम है, ये दुनिया में रहकर मुझे कैसे मालूम होगा? तो अल्लाह वाले कहने लगे तू अपनी जिंदगी में ये देख कि तूने अल्लाह के दीन को दुनिया में क्या मकाम दे रखा है। जो मकाम तू दुनिया में अल्लाह के दीन को दिया होगा वही मकाम तेरा अल्लाह के यहाँ होगा। अब मैं और आप आसानी से सोच सकते हैं कि हमने अल्लाह के दिन को क्या मकाम दे रखा है। क्या अजान होने पर हमारी दुकानें छूट रही है? अजान होने पर हमारा दुकान हमसे छूट रहा है? अजान होने पर हमारा कारोबार हमें छोड़ रहा है? अजान होने पर हमारा घर हमें छोड़ रहा है? ये सारी चीजें मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। हालांकि हदीस पाक में आता है अजान सुने और नमाज को ना जाए बहुत बड़ा जुल्म किया इसने, इसके कानों में शीश पिघला कर डाला जाएगा। हालांकि कितनी बड़ी ताज्जुब की बात, देखो दुनिया का नफा समझ में आ रहा है, लोग मुल्कों को सफर कर को कमाने जा रही हैं, दिन का नफा समझ में नहीं आया। मस्जिद को लगता दुकान रहे बेचारा अंदर जाने की तौफीक नहीं, मस्जिद को लगा हुआ घर है बेचारा अंदर जाने की तौफीक, पेशाब पाखाने के लोग जा रहे लेकिन मस्जिद आबाद नहीं हो। ये मस्जिदें आबाद तभी हो, देखो इन चीजों से मस्जिद को कहे आलीशान बना देने, मस्जिद चीजों से सजती नहीं। मस्जिद को अगर सजाना है तो मुसल्लियों से सजाना, वो मेरे और आपकी जिम्मेदारी है।
एक जगह मस्जिद ओपनिंग हुई, एक अल्लाह वालों को बोले हजरत आज हमारी मस्जिद की इब्तिदा है, ओपनिंग, जरा आप आकर दुआ करो। अब गए बैठे, लोग बोले देखो ये मार्बल हमें फलां जगह से ले, ये कालीन फलां मुल्क से ले लगे, इसकी लकड़ी फलां मुल्क से ले लगे। हजरत बोले कि मुल्कों से चीजें लेकर आए लेकिन मोहल्ले से नमाजी लेकर नहीं आए। असल जो मस्जिद जो आबाद होती है मेरे दोस्तों, कहे नमाजियों से आबाद होती है। अब मैं अपनी जिंदगी में सोचना है कि मेरी जिंदगी नमाज की दर्जे तक बाकी है, और मेरे और आपके नबी ने ये बात बतलाई है, जिसने नमाज पढ़ी उसने मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाई। और याद रखो, नमाज के टाइम पर गिरा जरूर अल्लाह पाक है, शैतान भेजता जाए, जरा जा, अल्लाह इम्तिहान लेती, देखेंगे अभी नहीं, इधर जाता कि उधर जाता कि नफा समझ में आगा, दीन का नफा समझ में आके नमाज पर अल्लाह क्या देने वाले हैं, ये अगर नफा समझ में आगा, 50,000 का गिराक मेरे दुकान के सामने आ गए, अब मैं ये व्यापार करा तो 20-30 हजार तभी नफा मिलती, मंजे मिसाल दे रहा हूँ, स्वतः नहीं मिलते हैं, तुम्हें कहा तब बोलेंगे कब देख दर लगो को, मिसाल दे रहा हूँ खाली में। 1 लाख रुपए का गिराक मेरे दुकान के पास अगर व्यापार करे तो आधा तब मिल रहा, 50 तब मिल रहा नफा। लेकिन दीन का नफा समझ में आया है, आजान हो गई है, उठोकर मार को निकलता है, नमाज को जाकर तो रुको, नहीं तो आप देख लो। अगर दीन का नफा समझ में नहीं आया, दीन का नफा उसे समझ में नहीं आया, तो 10 रुपए के गिराक के उसे नमाज छोड़ डालता, लेकिन गिराक नहीं छोड़ता। क्या छोड़ डालता बोलो? 10 रुपए के नफे के लिए क्या छोड़ डालता है? नमाज छोड़ डालता है। हो भाई, गिराक जमने का टाइम आ गया, टेम्पो छोड़ा दो ना, दूसरे दुकान को चले आता है। हालांकि मुसलमान कितना बेगैर हो गया, देखो अपने दुकान के, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कहा तुम्हें बोलने के बाद मैं आम बात कर रहा हूँ। मैं एक मर्तबा दुकान में बैठा था, एक साहबा को पूछे भाई फला चीज है क्या? उन्होंने बोले नहीं है, 1 घंटा टाइम रुको आ जाते क्या? दुकान वाला बोल रहा मैं दुकान में बैठू। अब उन्हें लेने वाला पूछ रहा है ये चीज फला काम तो मिलती है कि उन्हें पूरे मुल्क बगल में काम भी मिलती नहीं करते। ये बात है कि वो खुद नहीं चाह रहा है कि मेरी दुकान को आया हो गिराक दूसरे दुकान को चले जाए। लेकिन साहबा की जिंदगी को उठाकर देखें, एक यहूदी आया किसी साहबी की दुकान पर सामान खरीदने के लिए, अपने काम में मजबूत हुआ कर कहने का मुझे फला चीज चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो फला चीज मेरे पास मौजूद है, लेकिन तुम जो सामने वाला है ना दुकानदार, उससे खरीद लो। ईमानदारी से ऐसा कोई दुकानदार है हमारे में से भाई? हम जो हजरत साहबा की जिंदगी देखो, यही तो सिफात है, यही तो हमसे कहा जा रहा है कि साहबा वाली जिंदगी अपनाओ। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि दुनिया का कोई भी मॉडल हो वो जीरो है, मेरे साहबा सितारों के मानिंद। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मेरे साहबा सितारों के मानिंद, इनमें किसी एक की भी इत्तिबा कर लोगे मंजिल तक पहुंच जाओगे, अल्लाह के नबी का फरमान। अब उन्हें लेने वाला पूछा भाई मैं तेरे पास लेने आई हूं, तेरे पास दुकान में चीज है, तू क्यों देने से इनकार कर रहा है? दुकानदार ने कहा, वो साहबी ने कहा देखो मेरे पास सुबह से इतना गिराक आ गया है, आज मेरे घर का गुजारा हो सकता है, लेकिन मैं सुबह से देख रहा हूँ बेचारा दुकान में बैठा है, उसके पास कोई गिराक नहीं गया, तू मुझसे खरीद ले ताकि उसका भी कुछ मसला हल हो जाए। वो दुकानदार गया, उन्हें सोच रहा क्या मेरे बारे में बोल रहा ना, आज का लेच में चल रहा है, सो जरा सुबह से शाम तक व्यापार नहीं हुआ, जरा टेंशन है, जरा 1 महीना होगा। एक साहबा को मुझे बोले हजरत कोई अच्छे आमिल का नंबर है तो दियो जी। मैं बोले क्यों जी? क्या कि महीना होगा तो एटम का हमारे दुकान में भोल ही नहीं होती, वैसी परेशानी हो जाती है, बच्चा बेकार बैठे रहता है। मैं बोला बच्चा नमाज पढ़ता है क्या? बोले उठे तो उठता नहीं। बोले नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ाना सबसे बड़ी बंदिश है। हमें एक जुमला लिखा था, इससे पहले शायद आपको आया रहेगा, हमारी कौम उन लोगों के पीछे दौड़ रही है जो दूसरों के दुकान मकान के लिए बंदिश देती है, खुद के मकान के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाती है। ऐसी कौम के पीछे हमें दौड़ रही, ऐसी कौम के पीछे हमें दौड़ रही। अब जरा कहता है कौन के हंसलक गया तो बेचारा डाउट, क्या कि इन्हें हंसलक गया ना रहा, क्या कि इन्हें करे सका है, ये चक्कर शुरू है। अगर हमें सही रास्ते पर नहीं है तो ये सारी चीजें, ये मुसीबतें आना सोच पक्की तयशुदा बात है, तयशुदा बात है। इसलिए हम सहाबा वाले नहज पर आए। अब उन्होंने पूछे क्या भी किस्सा, इन्हें क्या बोलता था ना दुकान वाला, तुमने क्या? उन्होंने बोले तुम्हारे पास खरीद लो को बोले, अब सामान खरीद कर फिर दोबारा पहले वाले दुकान के पास है, जरा सामने आ जाओ बेटा। अब उन्होंने पूछे सामान नहीं खरीदे? बोले खरीद लिया। अब यहाँ मेरे पास क्यों दोबारा आए हो? उसने कहा, उस यहूदी ने कहा सामान उससे खरीदा है, ईमान तुमसे लेने आए हो, मुझे कलमा पढ़ा दो। इसकी एक अदा उस गैर ईमान को ईमान में दाखिल होने का जरिया बन गया। आज हमारे ईमान तो छोड़ा, अखलाक ऐसे हैं कि सगा भाई में बातचीत नहीं है, भाई भाई में बातचीत नहीं है, माँ बेटे में बातचीत नहीं है, हत्ता के मियाँ बीवी बातचीत नहीं है। ऐसे क्या भी उसे छोड़ो भी, मसला उसे सिर पर चढ़ा ले तो परेशानी। लेकिन मेरे और आपके नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो तुम्हारे घर वालों के लिए बेहतर हो। अब मैं और आप देख सकते हैं कि जिन बातों को अल्लाह के नबी ने बताया है कि अब मैं उसमें एक तभी फिट हो कि नहीं, मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। ये 12 जोड़कर यही बात हमें समझाई जाती है कि भाई हमारी जिंदगी में उस सतह का दिन आ जाए, हम सब उस सतह पर आ जाए कि हम मरे तो जमाना याद रखे कि फला आदमी था, फला जगह था, बेचारा चलेगा, वाकई अल्लाह का बंदा है, वाकई क्या
انہیں ہمیں آج کو دیکھے انہوں نے کبھی مسجد کو گیا سو لیکن کام ایسے کرتا تھا کہ دل سے دعا نکل جاتی تھی. لوگ ہم نہ یاد کرنے والے بنا ایسی زندگی گزار کر جانا. ورنہ میرے دوستوں بزرگوں میں کیا بتاؤں کتنی خبریں ایسی ہیں. آ جاؤ مولانا, کتنے خبریں ایسی ہیں لوگ دفنا کر ایسے بھول گئے جیسے دفنا ہی نہیں. جا کو خبر کھوجنے والے بولنے کہاں بھی ہمارا بہت کھانچ کان گاڑے تھے نا دوسری نہیں, یہ حال ہو جائے. اس کے لیے میرے دوست بزرگوں اللہ نے ہم سب کو موقع دیا ہے, دین پر چلنے کا موقع. موت سے پہلے پہلے موت آ گئی سارے مسئلے ختم. اس لیے بھی سب فکر کریں گے انشاءاللہ. مولانا آگے مختصر بات ہوتی ہے, آپ حضرات سے زیادہ وقت لے لیں, مختصر بات ہوتی ہے انشاءاللہ پھر کہے. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب,